کو براہ راست لیں گے. وفاقی وزیر شازیہ مری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. دیتے ہوں گے, گھر کا خرچہ اٹھاتے ہوں گے. اس شخص نے تو کبھی اپنا خرچہ نہیں اٹھایا, یہ اپنے گھر کا خرچہ کیا اٹھائے گا؟ ساری زندگی تو دوستوں کی جو ہے وہ پیسوں پہ پلتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ اپنا لی. اے ٹی ایم مشینوں کو جب حکومت میں آیا تو ان کو فیضیاب کیا تاکہ جو ان کا قرضہ اس پر چڑھا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اتارے, کیونکہ فیور لیتے ہو تو فیور واپس بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تو اپنے کھانے کا بل نہیں دیتا, یہ تو اس طرح کا آدمی ہے. آپ نے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ کھانا کھا رہا ہے, اگلا بندہ اس کا منہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تو اس کی ویلیوز ہیں. تو جو عمران خان کی ویلیوز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کچھ معصوم لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سیاست کا, دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا 90s کی سیاست ہوئی, اس کو یقیناً اس نے نقصان پہنچایا, اور پھر سیاسی جماعتوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو الگ کرنا ہے. ڈفرینسز ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے کئی نظریاتی ڈفرینسز ہیں, ان کے کئی ماضی میں ایسے ڈفرینسز ہیں جو بیٹھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, جب ہم افغانستان کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیارا ہونا چاہیے. جب ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحکام کا بھی سوچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں, یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے, یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں, بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں, امپورٹڈ کا یہ جو ہے وہ بین بجاتا رہتا ہے. لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھے, بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں, کہاں پلے, کہاں بڑے, کہاں کا کھا رہے ہیں. اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ, دوسری طرف ویسٹ کی مثالیں. ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے. ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے. ایسے اخلاقیات کی, ایسی مورالٹی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا ایمان, اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہیں, ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے اور وہ روز قیامت پہ لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں, اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بیہودہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں. وہ خود کتنا بڑا بیہودہ واہیات شخص ہے, یہ دنیا جانتی ہے. آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے, اس کے ماضی نہیں پتا. آج تک اس کی تصاویر, وہ خاتون جو میکسویل ہیں, جو چھوٹی بچیوں کی ٹریفکنگ میں پکڑی گئی, جو گرفتار ہے آج مغرب میں, جس کا یہ مثالیں دیتا ہے, یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی. تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا. اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے, خطبے دیتا ہے. لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے. وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے. بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے, اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں تمام تر کاروائی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا, اور یہ انتخاب عمل میں آیا. اس انتخاب کے بعد جو سیٹس, میرا خیال ہے 20 سے زائد سیٹس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے سنایا تھا. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے, ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی 22 تاریخ کو. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 22 تاریخ کو ہی صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوتھ لے رہا تھا, جس پر واقعی, کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہیں, اس قانونی نقطے پر یہ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسمبلی کا رکن ہے وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا, اور جب وہاں پر
एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया वहां पर, मेरे ख्याल एडवोकेट जनरल पंजाब ने, वो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये नुक्ता उठाया। तो जो स्पीकर उस वक्त थे मजारी साहब, जो स्पीकर के फराइज अंजाम दे रहे थे, तो मजारी साहब ने उस नुक्ते को भी सुना, क्योंकि पहले वो अनाउंस कर चुके थे ओथ का, लेकिन ये टेक्निकल जो पॉइंट था लीगल, ये बाद में उठाया गया। वो सुनने के बाद भी उन्होंने कहा मैं किसी भी शख्स को जो एक जमात से ताल्लुक रखता है उसको मैं महरूम नहीं करूंगा उसके राइट से, और वो ठीक है, वो टेक्निकलिटी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने रूलिंग दी, तो उनकी रूलिंग जो थी वो सामने आ गई और उन्होंने वोट दे दिया। बहरहाल अब वहां वोटिंग के बाद आपको पता है कि स्पीकर साहब ने फिर एक खत पढ़ के सुनाया, चूंकि जो पीएमएल है उसके जितने भी अरकान थे उनको उनकी जमात के सरबराह की जानिब से ये हिदायत एक खत के जरिए जारी की गई थी कि उनको वोट कहाँ देना है। मेरा ख्याल है हमजा शरीफ के बारे में उनकी वजाहत उस खत में थी, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमजा शहबाज शरीफ के को मेरी जमात के जितने अरकान हैं वो वोट डालेंगे। अब आइन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ऐसी हिदायत आती है और ऐसी हिदायत पर जो है वो उस हिदायत पर अमल ना करने के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो तो आइन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर आप जानते हैं कि उस जजमेंट में उन्होंने 63A की इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उन्होंने 20 से ज्यादा अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर ये तो उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अगर आप लोगों को ये बात याद हो। अच्छा, अब मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है उसकी इंटरप्रिटेशन का। अब जो उनका वो फैसला था वो सही था या गलत था, क्योंकि जो कार्रवाई पंजाब असेंबली में 22 तारीख को हुई है वो उसी अदालत के फैसले की रोशनी में हुई है। तो अगर अदालत का फैसला उन 20 से ज्यादा अरकान के लिए दुरुस्त था, तो फिर यहां पर जो खत मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का बतौर सरबराह पीएमएल, वो खत दुरुस्त नहीं है, ये अजीब बात है। और अगर इमरान अहमद नियाजी बतौर अपनी जमात के सरबराह के इसी तरह का खत अपनी जमात के लोगों को लिखते हैं, जो कि बुनियाद बनती है उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की और वोट खारिज होने की, तो फिर वो सही और ये गलत कैसे हो सकता है? अब ये तो दो खत है, एक खत जो है वो महान है और दूसरा खत जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो दो मयार है, दोहरा मयार बड़ा वाजे है। तो मैं समझती हूं कि इन चीजों को हमने पहले भी क्लियर किया है, हम एक बार फिर क्लियर करना चाहते हैं कि ये दो खत एक ही जैसे खत हैं। एक खत इमरान अहमद नियाजी ने बतौर सरबराह पीटीआई लिखा, दूसरा खत चौधरी शुजात ने बतौर पीएमएल के सरबराह होने की हैसियत से लिखा, और दोनों खतूत के अंदर अपने अरकान को वाज़े जो हिदायत थी वो मौजूद हैं। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तो बात तो वही है। अब इसको क्यों जो है वो उस दूसरी नजर से देखा जा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर सिलसिला खत्म होना चाहिए, और ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले। ये इमरान अहमद नियाजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया है 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बजाय इसके कि तुम ये बताओ कि 4 सालों में तुमने क्या यहां पर कारनामे अंजाम दिए। तोशे खाने के तहाइफ बेच बेच के तुमने अपने खजाने भरे। 2 लाख रुपए ये देता था जब ये वजीर आजम नहीं बना था। ये वजीर आजम बना, पहला साल इसने 1 करोड़ टैक्स दिया। 2 लाख टैक्स से 1 करोड़ टैक्स पे इसने जंप
छलांग लगाइए, ये तकरीबन 6000% का इजाफा है। भाई हम कोई पागल हैं? ये तुम कर क्या रहे हो उस मुल्क के साथ? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए, उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। तुमने ऐसे वहां पे काम किया है। बेशर्म शख्स है ये, बेशर्मी का मुजाहरा रोज कर रहा है। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि ये शख्स झूठा शख्स है। कोर्ट के ऊपर मैं यकीनन हम इंहिसार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं, हालांकि फैसले तारीख में कोई खुश आइन नहीं हुए हैं, हमें अफसोस भी होता है उन फैसलों के ऊपर, लेकिन आज भी नजरें अदालत के ऊपर हैं और अदालत के ऊपर आज उनके अपने फैसले की रोशनी में नजरें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन 20 से ज्यादा अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन का और उनकी इंटरप्रिटेशन 63A की थी, उसके ऊपर हमारी नजरें हैं। अगर तो वो सही है तो फिर ये जो हुआ है पंजाब असेंबली में 22 तारीख को, वो सही है। जी बैरिस्टर साहब, वो सही है। और अगर वो गलत है तो फिर मैं अदालत को गलत कहूं, फिर मेरे पे कोई कंटेम्प्ट ना हो, लेकिन ये तो अदालत का फैसला है ना जी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई पूछता है, किसी माजी की एक क्लिप चल रही थी, अगर आपने भी देखी है, चलाई होगी, उसमें पूछा गया कि जी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके के साथ जिस तरह वो बात करते हैं, मतलब वो तो ऐसे बात करते हैं ना जैसे उनके लफ्ज के बाद तो बस दिस इज द एंड। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बड़े पाए के जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, वो कहते हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि हम चेयर की रूलिंग के जो बात है वो नहीं हो सकती, चेयर की रूलिंग पर कोई और डिसीजन नहीं आ सकता। ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं बेंच के ऊपर। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता और इसमें देर होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला होना है, क्योंकि या तो फिर 63 की इंटरप्रिटेशन वो नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये सारी चीज क्रिएट हुई है। ये सारी चीज क्रिएट ही उसी इंटरप्रिटेशन के बाद हुई है ना, जो इंटरप्रेट हुआ 63A उस जजमेंट के अंदर। और अगर अब कोई फैसला आना है तो ये हमारी डिमांड समझ लें अदालत के सामने, या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी लफ्ज बेहतर है, कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए, लार्जर बेंच, जिसको मैं ख्याल टेक्निकली इट्स बेटर टू से लार्जर बेंच और फुल बेंच, सो दैट यू नो दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडेड विद दैट कलेक्टिव विजडम। क्योंकि आज पूरा जो रुझान है, जो पूरा फोकस है, वो अब इस फैसले के ऊपर है। तो लिहाजा हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से कि खुदारा इसे 3 मेंबर बेंच पर ना रखें, इसे लार्जर बेंच या फुल बेंच की तरफ ले जाएं, if you know a fair judgment is to be given on this. अच्छा, इसके अलावा बातें तो बहुत हैं, आपके सवाल भी होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुर्तजा वहाब साहब इस पर ऐड कर ले और फिर आपके सवालात की तरफ भी हम जाएं। गलत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत शहरी के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के और बहैसियत सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि जो नज़रियात होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अदालतों ने जो माजी में नज़रिया ज़रूरत था उसको अब दफन कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ जो भी उसूल हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, वो फिर एब्सोल्युटली अप्लाई करते हैं। और अगर कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर दिया जाए तो वो मुझ पर भी उसी तरीके से उसका अतलाक होगा जिस तरह शादिया बीबी के ऊपर होगा, और जिस तरह हम दोनों के ऊपर अतलाक होगा उसी तरीके से PTI के ऊपर होना चाहिए, PMLN के ऊपर होना चाहिए, या किसी और पाकिस्तानी शहरी के ऊपर होना चाहिए। जो गुफ्तगू का महवर है इस वक्त वो आर्टिकल शादिया बारी और मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, जिसका कुछ हिस्सा